On behalf of School of Media and Communication Studies, Pimpri Chinchwad University, I, Nidhi Veravadi, welcome you to today's webinar on career in mass media and journalism, featuring our esteemed speaker, Dr. Sanjay Singh Sir. Pimpri Chinchwad University, proudly the part of PCET, boasts a 33 years of legacy of excellence in education. We continue to lead by preparing young leaders for the future. Today, I'm pleased to welcome our Honorable Vice Chancellor, Dr. Manimala Puri Ma'am, and our Pro Vice Chancellor, Dr. Sudeep Sir, respected dean, directors, head of institutes, faculty members, and all the students who have joined us today for this event. This webinar aims to provide deep insights into the field of journalism, moving beyond what we typically see in newspapers and on television, and offering a behind the scenes of this industry. And before we begin, let's play a small introductory video. I request Mr. Ejaz to please play the video. So that was a brief introductory video, and it is my great pleasure to now formally introduce Dr. Sanjay Singh Sir, a distinguished journalist with over 27 years of experience. Dr. Singh has served in as a senior role at major news organizations such as NDTV, Times Now, CNN IBN, NewsX, and Zee News. His work, particularly in crime and investigative reporting, has uncovered major scams, including the largest ever in India, the Stamp Scam. And he is also the author of Telgi Scam Reporter's Diary, which is adapted for the hit Sony Live web series Scam 2003, The Telgi Story. He has also written other notable books like Ek Thi Sheena Bora, CIU Criminals in Uniform, and he is also currently working for his upcoming book, Ranga Billa. We also feel honored to announce that Sir is also on the Industry Advisory Board of School of Media and Communication Studies, Pimpri Chinchwad University. We welcome you, sir, and we feel deeply honored that you have joined us today. We are also honored to have Professor Narendra Bandabe, sir, with us today. Professor Bandabe, sir, is the head of School of Media and Communication Studies at Pimpri Chinchwad University. He is a renowned film critic and an international voter for 81st Golden Globe Awards in 2004. He is also a member of Free Press Scheme and has served on the jury at International Film Festival, Kerala in 2022. With over 20 years of experience, his contribution to journalism, media, and films are vast, including authoring the Marathi book Kubrick of legendary filmmaker Stanley Kubrick. I now hand it over to Professor Bandabe to lead this interactive session. The session will be followed by Q&A round, where we will take the questions from the students and audience. The audience can leave their questions in the chat box, and we will take these questions at the end of the session. So now enjoy this webinar, and we look forward to an enriching experience together. Over to you, Narendra sir. थैंक यू निरी, वेलकम संजय सर। और ये हम सेशन जो है हिंदी में रखेंगे ताकि आपने हिंदी पत्रकारिता में बहुत बड़ा काम किया है पिछले 27 सालों से, और हमारे पूरे देश भर से स्टूडेंट्स है वो इसमें शामिल हो रहे हैं। मुझे लगता है ये हिंदी भाषा का हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा बेहतर होगा, क्योंकि दूर दराज के बच्चे, ग्रामीण इलाकों से बच्चे हैं, तो हम लोग इसको हिंदी सेशन करेंगे। सबसे पहले तो जर्नलिज्म की जब बात आती है तो हर कोई पूछता है संजय सर कि ये बहुत ही एक्साइटिंग फील्ड है, तो मैं आपसे पहला सवाल यही पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप बहुत एक्साइटिंग फील्ड से है, तो कितना एक्साइटिंग है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीए जर्नलिज्म करने की सोच रहे हैं अभी, तो ये कितना एक्साइटिंग फील्ड है आप मानते हैं?
देखिए, मैं जवाब दूंगा एक्चुअली में। वी नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन द ग्लैमर एंड बीइंग एक्साइटेड। बहुत बार लोग ग्लैमर की वजह से अट्रैक्ट होते हैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की तरफ, और दूसरी बात होती है कि एक्साइटिंग। एक्साइटिंग बहुत है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जर्नलिज्म को हिस्ट्री का पहला रफ ड्राफ्ट कहा जाता है। तो जब भी इतिहास लिखा जा रहा होता है, या जब भी कोई बहुत बड़ी घटना हो रही होती है, ऐतिहासिक चीजें हो रही होती है, जब आप उसको कवर करते हैं, तो आपको पता है कि आप हिस्ट्री के उस पर्टिकुलर हिस्से का पार्ट है। एक्साइटिंग इसलिए भी होता है क्योंकि आपको पता है कि बाकी दुनिया को बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो आपकी वजह से हो रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। समाज में बहुत बार अच्छे बदलाव आपकी वजह से होता है, समाज में अच्छे बदलाव, आंदोलन वगैरह होते हैं, उसके उसका आप जरिया बनता है। तो जर्नलिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी चीज को बेहतर करने के लिए। चाहे हम समाज की बात करें, राजनीति की बात करें, शिक्षा क्षेत्र की बात करें, हर चीज के अंदर एक बदलने का बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, और हमेशा एक सर्विस के तौर पे इसे देखा जाता रहा है। तो और साथ में जो ग्लैमर है वो तो आता ही आता है, क्योंकि आपकी अपनी एक अलग पहचान बनती है, आपकी अपने फॉलोइंग बनती है। लोग आपको देखते हैं, बोलते हैं भाई हमने आपकी एक रिपोर्ट पढ़ी थी, या हमने आपको टीवी पे देखा था। आप बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों से सवाल करने की पोजीशन में होते हैं। बहुत बार जैसे स्टूडेंट्स हैं, शायद किसी पुलिस स्टेशन के बाद बाहर से जब जाते थे, या मैं जब स्टूडेंट जाता था, तो मुझे एक कांस्टेबल लेवल के बंदे से भी डर लगता था, भी बात करता था। लेकिन जब मैं पत्रकार होके 1 साल बाद जब पहुंचा था, तो मैं डीसीपी, जॉइंट कमिश्नर, कमिश्नर के लेवल पे सीधे सवाल करता था। ये बहुत बड़ी चीज होती है कि आप किसी के बिहाफ पर आप ये कर रहे हैं, और साथ में एक अलग तरह का जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। सर्टन प्रोफेशन को अगर आप कहें कि नोबल प्रोफेशन वगैरह में गिनेंगे, तो उसमें एक है सर्विस वाली चीज है। और इसके वजह यही एक वजह है कि एक्साइटिंग इसको ये भी बनाता है कि ये 10 to 6 का जॉब कभी नहीं होगा आपके। कि आप सोच रहे हैं कि मैं 8 घंटे के लिए जॉब करूंगा, तो ये 8 घंटे का जॉब नहीं होगा। ये अलग अलग टाइम फ्रेम में आप काम करेंगे, जैसे 24 आवर के सर्कल में ही आपके आपका जॉब होगा। और हर मतलब हर मिनट एक डेडलाइन के तौर पे होगी। तो ऑलरेडी एक्साइटिंग आपको लगेगा, और हमेशा आपको टूल्स पर रखेगा। और जैसे ये चीजें आएंगी, तो उसके साथ में उसकी जिम्मेदारियां भी आएंगी। लेकिन देर आर एनफ ग्लैमर एंड एक्साइटमेंट एक्चुअली इस फील्ड में रहने के लिए। और मैं देख रहा हूँ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा से ज्यादा लोग एक्चुअली में अब जर्नलिज्म की तरफ आ रहे हैं, वेरियस फॉर्म। चाहे प्रिंट में आ रहे हैं, या मोबाइल जर्नलिज्म में आ रहे हैं, या टीवी में आ रहे हैं। लेकिन एक लोगों का जबरदस्त रुझान हुआ, और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आने वाले अगर आप सालों में देखें कि 2 से 3 साल के अंदर उसकी इसकी मांग और ज्यादा बढ़ने वाली मोबाइल जर्नलिज्म की, और एक अच्छा खासा बड़ा फ्यूचर है इसमें। तो ये तमाम चीजें इसको बहुत ही एक्साइटिंग बनाती है नरेश। आपने सही कहा। और मुझे एक आपसे जानना था, क्योंकि बच्चा अभी शुरुआत, जो हमारे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो अभी अपनी शुरुआत करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने अपनी शुरुआत कैसे की, प्रिंट से की, टेलीविजन, क्योंकि आपने सबसे ज्यादा जो अपना वक्त बिताया वो टेलीविजन जर्नलिज्म में बिताया है। तो और आप आज एक सक्सेसफुल लेखक के तौर पर उभर कर आ रहे हैं। तो मैं एक बच्चों को बताने के लिए आप ये किस तरह से आपकी जर्नी उनको डिस्क्राइब करेंगे कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? देखिए, मैंने मेरी जर्नी पत्रकारिता की शुरू की थी 1995 में। आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे जो सुन रहे होंगे पैदा नहीं हुए होंगे तब तक। ये वो दौर था जब सिर्फ प्रिंट मीडियम ही हमारे यहाँ पे था, रेडियो पे जर्नलिज्म थोड़ा बहुत होता था, और टेलीविजन जस्ट नया नया इंडिया में आया था। तो तब मैंने शुरुआत की थी, और 1995 में एक लोकल सिटी केबल नाम का केबल न्यूज चैनल था, वो मैंने ज्वाइन किया था। मैं ये पर्टिकुलरली केबल चैनल इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो भी पत्रकार बनेंगे, आपके यहाँ पे कोर्स करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, तो हो सकता है हमेशा आपको बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन से शुरुआत करने नहीं मिले। या मेरा तो मानना है कि जितने छोटे या जितने लोकल से शुरू करोगे, आपको सीखने उतने ज्यादा मिलेगा। तो मैं उस मामले में लकी था कि एक लोकल केबल चैनल से मेरी शुरुआत हुई थी, सिटी केबल नाम का। उसके बाद मैंने जी न्यूज ज्वाइन किया था, फिर जी न्यूज के बाद में मैंने स्टार न्यूज ज्वाइन किया, स्टार न्यूज के बाद मैंने एनडीटीवी ज्वाइन किया, एनडीटीवी के बाद मैंने टाइम्स नाउ ज्वाइन किया। अब तक मैं हिंदी जर्नलिज्म में था, लेकिन अंग्रेजी जर्नलिज्म में शुरुआत मैंने की थी वो टाइम्स नाउ से की थी। उसके बाद आईबीएन ज्वाइन किया था, उसके बाद न्यूज एट ज्वाइन किया था, देन अगेन आई टूक अ ब्रेक एंड केम बैक एंड वर्क विद जी। तो अलग अलग जगह पे मैंने काम किया। और हिंदी जर्नलिज्म की बात हो या अंग्रेजी जर्नलिज्म की बात हो, दोनों तरह के जर्नलिज्म में किया था। जब मैं एनडीटीवी में था, तब वो तेलगी स्कैम जो था, उसको जो था मैंने एक्सपोज किया था। और इसमें ऑलराउंड तमाम चीजों का एक अनुभव मिल जाता है। जब आप शुरुआत करते हो एक रिपोर्टर से, फिर आपके धीरे धीरे
पकड़ बनी तो आप सीनियर रिपोर्टर बनते हैं, आप ब्यूरो चीफ बनते हैं, उसके बाद आपका प्रमोशन होता है एडिटर लेवल पर। और एक बहुत अच्छा इवोल्यूशन का प्रोसेस है। जर्नलिज्म में अच्छी बात यह है कि हमेशा आपको टॉस पे रखता है, हमेशा आपको सीखने में मिलता है, और लगातार आप इवोल्यूशन के तौर पे होते हो, टेक्नोलॉजिकली आपको हमेशा अपडेट रखना। तो ये मेरी एक जर्नी रही थी। मेरे ख्याल से मैंने अब तक के करियर में 7 से 8 जगह पे नौकरी की है, जॉब किया हुआ है। और ये आपको इसलिए भी जान, इसका पॉजिटिव चीज ये है कि आप सोचिए कि जॉब की अपॉर्चुनिटी कितनी सारी ओपन होती है। अच्छी खासी जॉब की अपॉर्चुनिटी, आप 2 ढाई साल में आप अपग्रेड करके एक नई जगह जा रहे हैं, नए तरीके सीखने मिल रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं। तो ये एक अच्छी थी। तो ये मेरी लगभग जर्नी रही थी इसमें। इसके अलावा उसके बाद जो एज अ लेखक वाली मेरी जर्नी शुरू हुई थी, जिसमें कई किताबें थी जो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में बताया, वो बात। अच्छा। और क्योंकि स्टूडेंट्स अभी जानना चाहते हैं कि आपने आपकी शुरुआत तो की, बहुत अच्छी तरह कार्य, सक्सेसफुल करियर रहा है आपका। एक रिपोर्टर के तौर पर जब कोई शुरुआत करता है अपनी, तो उसमें कौन सी वो क्वालिटी होनी चाहिए जिससे वो रिपोर्टर कहलाएगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, रिपोर्टर कहूं या पत्रकार कहूं, हम जो कोई भी शब्द इस्तेमाल करते हैं जर्नलिस्ट या रिपोर्टर के तौर पे, मुझे लगता है क्या 5 जो क्वालिटी है नरेंद्र, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक होते है जिसको हम कहते हैं नोज फॉर न्यूज। आपको न्यूज के बारे में एक्चुअली में समझ में आना चाहिए, आपको न्यूज सूंघने आनी चाहिए। तो नोज फॉर न्यूज एक बहुत बड़ी जरूरी चीज होती है, और जो बहुत बार इनबिल्ट होती है, हम डेवलप कर लेते हैं। दूसरी चीज होती है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, और उसे हर कंडीशन में हर काम करने को आना चाहिए। उसे कमर तक पानी में खड़े होकर रिपोर्टिंग करना आना चाहिए, उसे रेगिस्तान में भी रिपोर्टिंग करने आना चाहिए, उसे बर्फ भरे हिमालय में भी रिपोर्टिंग करना आना चाहिए। जब दंगे हो रहे हैं तब भी वो रिपोर्टिंग करे, और एक बहुत अच्छी फेवरेबल फिल्म फेयर अवार्ड टाइप हो रहे हैं तब भी उसे रिपोर्टिंग करना आना चाहिए। हर लेवल पे उसको काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो नोज फॉर न्यूज, हार्ड वर्क। उसके बाद जो तीसरी चीज मुझे लगता है टेक्निकल कैपेबिलिटीज, ये नई चीज है और ये जाननी जरूरी है। आज से शायद 30 साल पहले या 20 साल पहले जो जर्नलिज्म पढ़ाया जाता था, उसमें टेक्निकल कैपेबिलिटीज के बारे में इतना नहीं था, क्योंकि उसमें तब यही था कि आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अब आपको टेक्निकल कैपेबिलिटीज भी होनी चाहिए, बिकॉज हम जिस दौर में है, आपको खुद अपने मोबाइल से शूट करने के आपको आना चाहिए, आपको उसको एडिट करने को आना चाहिए, आपको वॉइस ओवर कर देने को आना चाहिए, और प्लस ऑब्वियसली आपको लिखने को आना चाहिए। और आई एम श्योर कि आज की जो जनरेशन है वो ये करने में बहुत एक्सपर्ट है, बिकॉज जिस हिसाब से मैं उनकी बनी हुई रील्स वगैरह देखता हूँ, खासकर 40 सेकंड में अपनी स्टोरी कह पाते हैं। तो ये तीसरी चीज जो कि मुझे टेक्निकल कैपेबिलिटीज होती है। चौथी, मुझे लगता है कि उसकी बहुत कुछ डिपेंड करता है उसकी ट्रेनिंग और टीचिंग किस तरह से हुई, कि उसको कितनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी गई है, कितना उसको थियोरेटिकल ट्रेनिंग दी गई है। अब जर्नलिज्म को आप समझिए कि जर्नलिज्म की जो टीचिंग होती है वो टीचिंग कम और ट्रेनिंग ज्यादा होती है। इट्स अ मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल काइंड ऑफ थिंग। जैसे मैं किसी को क्लासरूम में बिठाकर मैं शायद क्रिकेट खेलना नहीं सिखा सकता हूँ या स्विमिंग करना नहीं सिखा सकता हूँ। अगर मुझे उसे क्रिकेट खेलना है तो मुझे मैदान पर ले जाना पड़ेगा, या स्विमिंग करना है तो उसे पूल में फेंकना पड़ेगा, गीला होना पड़ेगा, मैं ब्लैक बोर्ड पे नहीं पढ़ाता। तो उसकी टीचिंग और ट्रेनिंग किस तरह से होती है, यहाँ पे आप जैसे लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो एक्चुअल में, जैसे आप खुद इतने साल पत्रकार रहे हैं, 15 से 20 साल आपने पत्रकारिता की है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेके आया, तो वो जो टीचिंग और ट्रेनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट। और जो चौथी चीज पांचवी चीज मुझे लग रही है कि एक रिसर्च। रिसर्च उसे अच्छे से करने आनी चाहिए, और रिसर्च का मतलब गूगल सर्च बिल्कुल नहीं होता है। ये हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि एक अच्छे से रिसर्च किसी भी चीज की करनी है, उसके हर पहलू की करनी है। तो ये मेरे ख्याल से 5 क्वालिटी मुझे लगता है होनी चाहिए। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, नोज फॉर न्यूज, हार्ड वर्क, टेक्निकल कैपेबिलिटीज, उसकी टीचिंग और ट्रेनिंग किस तरह से हुई है, और साथ ही रिसर्च। ये 5 चीज उसकी शुरुआत में होनी चाहिए। अरे 5 में से मैं बता दूं कि नोज फॉर जो न्यूज है वो इनबिल्ट है, धीरे धीरे डेवलप होता है इवोल्यूशन के अंदर। हार्ड वर्क है, उसका कोई विकल्प नहीं हो, तो उसे करना ही करना। उसके बाद में जो बची हुई 3 चीजें हो जाती है, जैसे टेक्निकल कैपेबिलिटी हो जाती है, टीचिंग ट्रेनिंग होती है, और रिसर्च। इसमें एडुकेशन इंस्टीट्यूट की बहुत बड़ी भूमिका होती है, किसी भी तरह का, जहाँ पे वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो सीख रहा है, जो भी कोर्स वगैरह कर रहा है, कोर्स किस तरह से डिजाइन है, उसके टीचर्स किस तरह से हैं, वहाँ पे कितने अच्छे तरीके से जैसे टेक्निकल स्टूडियोज हैं, एडिटिंग के सॉफ्टवेयर, और उसको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट कितने दिए जा रहा है, ये बहुत मायने रखता है। तो 5 में से जो 3 चीजों में किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसकी बहुत जबरदस्त भूमिका होती है, और बाकी हार्ड वर्क उसे करना है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है।
और नोज फॉर न्यूज जर्नलिज्म का सबसे बेसिक है। सर ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि क्या क्या रिपोर्टर के पास होना चाहिए, पर एक बार जब आप इस फील्ड में एंटर करते हैं तो आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं। आपने अपना स्पेशलाइजेशन चुना क्राइम, क्राइम रिपोर्टिंग, ठीक है। तो ये स्पेशलाइजेशन चुनने की प्रक्रिया क्या होती है, और अगर, क्योंकि आपने क्राइम रिपोर्टिंग की स्पेशलाइजेशन चुनी है, तो क्या एक क्राइम रिपोर्टर बनने के लिए वो क्या क्या जरूरी होता है, और क्राइम रिपोर्टर बनने के बाद आपको क्या क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर हम हमारे स्टूडेंट्स को आप बताएं। जी मैं आपको बता दूं कि किसी भी रिपोर्टर की जब शुरुआत होती है तो उससे सारी चीजें करनी चाहिए उसे। उसके करियर के शुरुआत में मास्टर ऑफ वन सब्जेक्ट के बजाय उसे जैक ऑफ ऑल बनना चाहिए। उसे सब चीजें पता होनी चाहिए। उसे क्राइम भी पता आना चाहिए, पता कवर करना चाहिए, पॉलिटिक्स भी कवर करना चाहिए, स्पोर्ट्स भी कवर करना चाहिए, एंटरटेनमेंट करना चाहिए, एडुकेशन, ट्रांसपोर्ट, तमाम अलग अलग जो डिफरेंट काइंड ऑफ बीट्स है वो उसे जरूर कवर करना चाहिए, ताकि वो चीजों को सीख जाता है। शुरुआत में उसको तमाम चीजें पता चल जाए, क्योंकि ये तमाम चीजें इंटरलिंक्ड होती है। सिर्फ एक बाद में आप आगे जाकर आप एक अलग पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन चुन लेते हैं, उसमें आपको खुद पता चलने लगता है कि भाई मुझे किसमें दिलचस्पी ज्यादा है और किसमें मेरी दिलचस्पी कम है। क्या मुझे अच्छा लगता है, ये अलग बात होती है, और क्या मैं अच्छे से कर सकता हूँ, ये दूसरी बात होती है। तो वो तमाम के बाद वो बेसिकली फैसला कर सकता है। और ग्लैमर के बजाय हर बीट जर्नलिज्म की बहुत अच्छी होती है, जैसे, और हर चीजें इंटरकनेक्टेड है, आप सिर्फ एक के होके नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि स्टूडेंट देखते हैं आईपीएल का, तो क्या आईपीएल सिर्फ एक स्पोर्ट्स का इवेंट है? तो मैं कहूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का तो उसमें काम है ही, लेकिन स्पोर्ट्स के अलावा क्या आईपीएल एंटरटेनमेंट से जुड़ा इवेंट नहीं है? आज हमारे तमाम, शाहरुख खान से ले, प्रीति जिंटा ले, तमाम बहुत सारे फिल्म कलाकार वगैरह हैं, वो तमाम चीजों से जुड़े रहते हैं। आईपीएल एंटरटेनमेंट भी है, लोग फिल्मों का प्रमोशन करते हैं। तो स्पोर्ट्स के अलावा एंटरटेनमेंट भी। क्या स्पोर्ट्स के अलावा आईपीएल बिजनेस न्यूज नहीं है, कॉर्पोरेट के नहीं है? बिकॉज राइट फ्रॉम मुकेश अंबानी की बात करें या अलग सन ग्रुप की बात करें, अलग अलग जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस है, उन्होंने ये चीज को खरीद के रखा हुआ है आप टीम को। तो एक कॉर्पोरेट इवेंट भी है, बिजनेस जर्नलिस्ट के लिए भी उसका आईपीएल के अंदर स्कोप है। क्या पॉलिटिकल इवेंट्स नहीं है? बिल्कुल पॉलिटिकल इवेंट्स है, बिकॉज बीसीसीआई से लेके क्रिकेट के तमाम पदों पे बड़े बड़े पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं। आपको जब बॉक्सेस में जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए पॉलिटिशियन दिखाई दे जाएंगे, उनके एडमिनिस्ट्रेटर पॉलिटिशियन, तो इससे ऑल्सो पॉलिटिकल न्यूज। और उसके अलावा क्या ये क्राइम की न्यूज नहीं है? बिल्कुल क्राइम की न्यूज है। बेटिंग होती है, मैच फिक्सिंग होती है, इसको लेके टिकटों की कालाबाजारी होती है, तमाम चीजें होती है। तो कोई भी एक इवेंट होती है, उसके बहुत सारे पहलू होते हैं। तो जब आप क्राइम सोचेंगे तो क्राइम की भी सेम बात होती है कि क्राइम स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड होगा, क्राइम आपके एंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी होगा, क्राइम आपका पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड होगा। हर चीज एक दूसरे से इंटरलिंक होती है। तो हमें सबके बारे में एक्चुअली में जानकारी रखनी चाहिए। हमारा एक किसी भी जर्नलिस्ट का आईक्यू लेवल इतना होना चाहिए कि वो कोई भी एक अखबार उठाए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी टाइम्स ऑफ इंडिया, खाली नाम के लिए मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो उसकी पहली खबर से लेके उसकी आखिरी खबर तक उसे समझ में आनी चाहिए। वो उसका मास्टर भले नहीं होगा, लेकिन उसको समझ में आना चाहिए कि सेंसेक्स जब 700 पॉइंट नीचे जाता है तो उसका मतलब इकोनॉमी के लिए क्या होता है। इंडिया जब ओलंपिक के अंदर 2 गोल्ड जीतता है तो उसका मतलब इंडिया के लिए क्या होता है। हर चीज के बारे में उसे बेसिकली समझ में आना चाहिए। सिर्फ क्राइम और क्राइम का होके नहीं रह सकता है, एंटरटेनमेंट का रिपोर्टर सिर्फ एंटरटेनमेंट का नहीं होता। और यही जर्नलिज्म की ब्यूटी है कि आप अंडर द सन एनी टॉपिक को कवर करने में सक्षम होते हैं। अंडर द सन एनी टॉपिक को एक्चुअली आप बात करने के लिए, उस पर अपनी राय देने के लिए सक्षम होते हैं। तो ये चीजें होती है। और जैसे आपने पूछा कि क्राइम का उसके लिए क्या होता है, तो जैसे आप, मैंने शुरू किया था तो मैंने पॉलिटिक्स भी, पॉलिटिकल न्यूज भी कवर की थी, स्पोर्ट्स भी किया था शुरुआत में मेरे करियर के, एंटरटेनमेंट भी था, रूरल और ट्राइबल इंडिया को भी मैंने कवर किया था। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि मेरा अपना इंक्लिनेशन है वो क्राइम और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की तरफ है। और प्लस उसमें मैं उसको अच्छे से परफॉर्म भी कर पा रहा था। इट्स नॉट ओनली कि मुझे ग्लैमर के तौर पे था, लेकिन मैं उसे अच्छे से एग्जीक्यूट भी कर पा रहा था। फिर अब मेरे करियर मैंने क्राइम की तरफ, क्राइम पर अपना स्पेशलाइजेशन करना शुरू किया। तो तमाम स्टूडेंट्स को भी ये सलाह है कि जब शुरुआत वो करे तो हर चीज को कवर करे, हर चीज के बारे में जानकारी रखे, और उसके बाद में जैसे उन्हें खुद पता चलते जाएगा धीरे धीरे कि ये मेरा इंक्लिनेशन किस तरफ है, और उसके बाद वो चाहे क्राइम का अपनी बीट चुन ले, स्पोर्ट्स चुने, पॉलिटिक्स चुने, एजुकेशन चुने, ट्रांसपोर्ट चुने, एनवायरमेंट चुने, बहुत सारी बीट्स एक्चुअली में है इसके अंदर वो कर सकता है। अब कोई भी बीट किसी से छोटी या बड़ी नहीं होती है। किसी में थोड़ा ग्लैमर ज्यादा होगा, किसी में ग्लैमर कम होगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उतनी ही जरूरी होती है।
ओके। एक तो जर्नलिज्म इतना फील्ड जो है इतना अनसर्टन है। आपने कुछ देर पहले कहा था कि ये इसमें हर समय में एक चैलेंज आता है। आपका 24/7 आपका जॉब है, तो बहुत सारा क्राइसिस से रिलेटेड न्यूज आपके पास आती है, और उस क्राइसिस न्यूज में एक रिपोर्ट को किस किस तरह से अपने आप को तैयार करना है, इसके बारे में भी आप बता दीजिए। क्योंकि बहुत सारे आपने जैसे 26/11 का हमला हुआ, उससे पहले बहुत सारे बम ब्लास्ट हुए मुंबई में, या फिर उससे या फिर पॉलिटिकल क्राइसिस। ऐसे में एक रिपोर्टर को किस तरह से अपने आप को तैयार करना चाहिए, इसकी जानकारी आप हमें दे दीजिए। देखिए, मेंटली आपको आपको बहुत टफ रखना पड़ता है। आपने 26/11 का एग्जांपल दिया तो मैं उससे बात कर रहा हूँ कि 26/11/2008 को हमला हुआ था, तब आप और मैं एक ही चैनल में काम कर रहे थे, IBN 7 में। आप और मैं थे, और मुझे याद है कि मैं उस दिन, क्योंकि मैं नजदीक में था तो मैं फील्ड पर गया था, और आप क्योंकि ऑफिस से करीब थे, आपके ऑफिस में थे, और वहां से आप एज ए कंट्रोल रूम सारे रिपोर्टर्स को कंट्रोल कर रहे थे, इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, और मैं उस वक्त में फील्ड में था। और दोनों हालत के अंदर, चाहे आप ऑफिस में हो, मुझे याद है कि गुरुवार के शाम को हम लोग घर से निकले थे, रात को घर से निकले थे, और उसके बाद शनिवार दोपहर के बाद गए थे। हम लोगों ने मेरे ख्याल से 59 to 60 आवर्स बिना सोए, बिना खाए, और बिना किसी तरह का आराम किए और फैसिलिटी लिए, बिना कपड़े बदले, बिना नहाए, हम लोगों ने रिपोर्टिंग की थी, क्योंकि वो देश का सबसे बड़ा अब तक का खतरनाक हमला भारत देश पर हुआ था। और भारत ही नहीं, सारी दुनिया में एक्चुअली इस हमले की चर्चा हो रही थी, सारा दुनिया का मीडिया वहां पे मौजूद था उस वक्त के अंदर। मतलब ऐसे हो रहा था कि आप जब 59 आवर्स तो 60 आवर्स आप जगते हो, तो आपको पता नहीं चलता दिन है कि रात है। ये इसके बीच का आपको फर्क पता नहीं चलता, लगता है कि आप ड्रीम कर रहे हो। इस तरह का बहुत बार मेंटल हालत हो जाता है। या बहुत बार मुझे याद है कि मुझे आपका ही याद है कि एक बार मुंबई में पानी भरा हुआ था, और कमर तक पानी के अंदर आपको ऑफिस आना था, ये करने के लिए आप शायद 4 किलो या 4 या 5 किलोमीटर आप पैदल कमर तक पानी में चल के आप ऑफिस पहुंचे थे। और उस दिन जरूरी था, क्योंकि बाकी मुंबई को वो तमाम बारे में पता चलना बहुत जरूरी था कि किस तरीके से ये बाहर क्या हो रहा है। तो ये देखिए, अगर पत्रकार कॉलेज के अंदर आप जब तक रहेंगे, स्कूल कॉलेज में रहेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा, पानी बहुत भर गया है, चलो आज स्कूल कॉलेज से छुट्टी हो गई। या बाहर दंगे हो रहे हैं, चलो आज स्कूल कॉलेज से छुट्टी हो गई। या ट्रेन आज बंद हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन बंद है आज की तारीख में, चलो स्कूल से छुट्टी हो गई, आज आराम मारते चिल करो। पत्रकारिता में एग्जैक्टली इसका अपोजिट होता है। जिस दिन पानी भरा हुआ है, उस दिन आपको कमर तक पानी में चलना पड़ेगा, पानी में खड़े होके भीगते हुए रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, और उसके बाद बिना बीमार पड़े अगले दिन फिर काम पे आना पड़ेगा। या सेम है, कल दंगे हो रहे हैं तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई दंगा हो रहा है तो मैं कहते जाऊं। दंगा हो रहा है तो आपको जाना ही जाना है। कहीं बंद पुकारा गया, ट्रांसपोर्टेशन का अगर प्रॉब्लम हो गया, तब भी आपको जाना है। अरे आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि जब आप वहां पर जा रहे हैं एज अ पत्रकार, और आप जब देख रहे हैं जिसको रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाकी दुनिया को एक्चुअली में पता चलता है कि हालात क्या है। कोई तय करता है कि भाई हम हमारे बच्चों को स्कूल कॉलेज आज भेजे या नहीं भेजे, हमारी फ्लाइट है ट्रेन पकड़ने के लिए हम जाएं या नहीं जाए, हमारी गाड़ियां कैंसिल हो गई नहीं हो गई, तमाम इंफॉर्मेशन इसलिए पता चलती है क्योंकि उस दिन वो रिपोर्टर कमर तक पानी में चल के गया है, या दंगे के दौरान उसने खड़े होकर रिपोर्टिंग की है कि बहुत सारे लोगों की जान बच रही है। और बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल करता है, क्योंकि इस तमाम चीजों में मिस इन्फॉर्मेशन और गलत इन्फॉर्मेशन, फर्जी न्यूज बहुत फास्ट स्प्रेड होती है। तो उस वक्त में वो उसको कंट्रोल करने का काम और सही इन्फॉर्मेशन देने का काम होता है। जितनी ज्यादा क्राइसिस होगी, उतनी ज्यादा जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमारे समाज जो स्टूडेंट देख रहे हो जानते हो कि जब भी बड़ी क्राइसिस की चीजें होती है, तो लोग अपना टेलीविजन चैनल पे खोल के बैठ जाते हैं, उस पर देखते रहते हैं, या मोबाइल के ऊपर न्यूज की फीड्स वगैरह है उसको लगातार मॉनिटर करते हैं, सोशल मीडिया पे न्यूज को मॉनिटर करना शुरू करते हैं कि क्या हो रहा है। तो ऐसे में बहुत जिम्मेदारी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, और उनको मेंटली उसके लिए बहुत ही तैयार रहना पड़ता है। और सुनने में भले आपको टफ लगे, लेकिन जब आप वो काम को एग्जीक्यूट करते हैं, तो जो आपको खुशी मिलती है, जो जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो बहुत कम जॉब है जिसके अंदर एक्चुअली में मिलता है। इट इज लाइक दैट कि कल क्रिकेटर बोल रहा है, विराट कोहली कब जब 100 मार रहा है, जब 100 सेंचुरी मारने के दौरान वो पूरी तरह से थक चुका होता है, हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, बॉडी में एक दो जगह बॉल लगे हैं, सांस फूल रही है, तमाम चीजें होती है, लेकिन जब वो सेंचुरी मारता है तो उसके चेहरे की जो खुशी होती है वो आपको अलग तरीके से दिखाई देती है, और उसकी सेंचुरी में बाकी जो उसके जो फैंस है उसकी खुशी भी वो दिखाई देती है। तो थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा सा टफ टाइम आपको जरूर मिलेगा, लेकिन दुनिया में, जैसे मैंने मेरी किताब में लिखा था कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना डार्लिंग।
हाँ, आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो तमाम रिस्क रिस्क लेके आप भी यहाँ तक पहुंचे हैं। मुझे एक जानना है आपसे बात करते समय कि आप ना पिछले 20-25 सालों से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, 27-28 सालों से। आप, आपकी किताब आई 2003 में, जो तेलगी स्कैम था, वो सबसे बड़ा, इस देश का सबसे बड़ा स्कैम था। एक तो ये जो बच्चे हैं उनको ये जानना है कि एक सादा क्राइम इंसिडेंस और स्कैम, इसमें अंतर क्या होता है, और दोनों की रिपोर्टिंग में क्या क्या आप एक सिंपल क्राइम स्टोरी और एक स्कैम को उजागर करने की प्रक्रिया क्या होती देखिए, जो दोनों में फर्क होता है वो वॉल्यूम का होता है, चाहे वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ मनी या चीजों क्या हो, या क्राइम का जो नेचर है वो कितना बड़ा है और कितना लंबा है उसके ऊपर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि एक एक घर के अंदर चोरी हुई और पुलिस ने 2 घंटे के अंदर चोर पकड़ ले। आप जाएंगे, वो खबर कवर करेंगे, शायद 2 से 3 घंटे में वो खबर आपकी पूरी भी हो जाएगी, आप तुरंत उसको फाइल भी कर देंगे, पुलिस भी आपको कोऑपरेट कर, वो तरह का हो जाता है। उसके बाद की कुछ चीजें होती है जो ऐसे क्राइम होते हैं जिसको लगातार फॉलोअप की भी किया जाता है, सिर्फ एक स्टोरी में जो पूरे नहीं होते हैं, उसके लिए आपको 8-10 स्टोरीज करनी पड़ती है। बहुत सारे एग्जांपल अगर मैं बता दूं कि रिसेंटली कोई बैटिंग रैकेट पकड़ा गया, या कोई ऐसा क्राइम हुआ कि एक बंदा पकड़ा गया, उसका पूरा क्राइम सॉल्व नहीं हुआ, फिर अगला पकड़ा गया, फिर अगला पकड़ा गया। फॉर एग्जाम्पल ले लो, अभी सलमान खान के घर के बाहर रिसेंटली फायरिंग हुई, उसका एग्जाम्पल लीजिए। फायरिंग हुई, वो एक न्यूज हो गई। उसके बाद उसको उनकी तलाश चल रही है, वो दूसरी न्यूज हो जाती है अगले दिन। उसके बाद उनको कहीं पे पकड़ा गया, वो तीसरी न्यूज हुई। पकड़े जाने के बाद उन्होंने जानकारी क्या क्या दी पुलिस को, ऑफ रिकॉर्ड में या ऑन रिकॉर्ड में, वो आपकी चौथी न्यूज हो गई। कोर्ट के अंदर क्या हुआ वो आगे, तो ये दूसरा एक पहलू होता है। उसके बाद उसके ऊपर आता है स्कैम। स्कैम का बेसिकली मतलब होता है कि आम जनता का जो पैसा है, जो हार्ड अर्न मनी होती है, जो लोगों ने किया, उसको उसको किस तरह से लोग हड़प लेते हैं। और स्कैम एकदम सिस्टमेटिक तरीके से होता है। जैसे तेलगी स्कैम जब हुआ था, मैंने उजागर किया था, तो स्कैम जो था वो लोकल पॉलिटिशियन, लोकल पुलिस और लोकल अंडरवर्ल्ड की मदद से चलने वाला स्कैम। तो स्कैम का दायरा बहुत बड़ा होता है, इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है, और इससे आम आदमी को बहुत ज्यादा एक्चुअली नुकसान होता है। और यही वजह है कि ये स्कैम को भी एक्सपोज करने में हमेशा बहुत दिक्कत आती है और ज्यादा उसके अंदर तकलीफ होती है, क्योंकि जब कोई स्कैम आता है तो बड़े बड़े लोगों के नाम आते हैं, कोई छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं होता। हर स्कैम का मास्टरमाइंड या उसके सपोर्ट करने वाले तमाम बड़े लोग होते हैं, चाहे पुलिस में हो, चाहे राजनीतिक पार्टी से हो, या किसी या फिर अंडरवर्ल्ड के बड़े हो। ये तीनों के बीच में बुनियादी फर्क है, वॉल्यूम का और उसकी इंटेंसिटी। है? एक तो आपने कहा था कि आपका ही डायलॉग है कि कुछ बड़ा करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा ना डार्लिंग। वो तेलगी के जो सोनी लिव पे तेलगी स्कैम की जो सीरीज है उसमें वो बार बार कहते रहता है, रिपोर्टर की रिस्क कितनी होती है इसमें। स्कैमस्टर तो स्कैम कर लेता है, रिपोर्टर्स की रिस्क क्योंकि क्या आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर बनता है, पुलिस आपके पीछे लगती है, इस तरह से रिपोर्टर के साथ होता है, उसको टैकल किस तरह से रिपोर्टर को करना चाहिए। देखिए, रिस्क आपको हर तरीके की चीज होती है, और साथ में रिस्क की सस्टेनेबिलिटी देखनी है। जब मैंने तेलगी स्कैम एक्सपोज किया था, तब उसका वॉल्यूम था सन 2003-4 के अंदर 40,000 करोड़। इसको आज मैं रेट ऑफ इन्फ्लेशन से अगर कैलकुलेट करता हूँ तो इट बिकम्स मोर देन 1 लाख करोड़ के आसपास हो, इससे भी ऊपर जाता है। और उसमें अलग अलग लेवल के लोग इन्वॉल्व थे। जैसे तेलगी स्कैम के दौरान मैंने जो रिपोर्टिंग की थी, उसके से 12 पुलिस वाले गिरफ्तार हुए थे, जिसमें मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, डीसीपी, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वगैरह अरेस्ट हुए थे। 2 एमएलए अरेस्ट हुए थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर छगन भुजबल को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, और मुझे याद है कि उन्होंने एक भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आप, अरे आप भी शायद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, डेट 28 अप्रैल 2004 के दिन, जिसमें उन्होंने मैंने सवाल पूछा था, तो उन्होंने ये कहा था कि इस तरह के सवाल कोई पूछेगा तो मैं चप्पल उतार के मारूंगा। ये मैंने, मेरी जो किताब है उसमें भी एक्चुअली मैं उसको रखा हुआ। तो इस तरह के रिस्क थे, लेकिन उसके बावजूद मैं वहां पर खड़ा रहा। तो प्रेशर रिस्क आप पे हर तरह का आएगा, और जितना बड़ा और जितना बड़ा काम करेंगे, जितना ज्यादा काम करेंगे, उतना ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर आएगा, उतना ज्यादा आपके ऊपर रिस्क आता रहेगा। मैं ऐसे बता दूं कि आप गली का क्रिकेट खेलेंगे तो आपको हल्के फुल्के बॉलर से खेलना पड़ेगा। जब आप आईपीएल खेलेंगे या वर्ल्ड कप खेलेंगे तो आपको दुनिया के टफेस्ट बॉलर को खेलना पड़ेगा, लेकिन आपको रन तो बनाना ही है। तो इसी तरह से आपको वो काम तो करना, हर तरह का प्रेशर आता है। बट प्रेशर मैं आपको बता दूं किस पर नहीं आता है। आज जो हमारे स्टूडेंट जो सुन रहे हैं, इनको जब ये लोग पढ़ाई करते हैं, और मेरे ख्याल से सब
हमारी तरह जो आखिरी एक या 1.5 महीना पढ़ने वाले लोग ही ज्यादा लोग होते हैं। तो क्या उन पर पढ़ाई का प्रेशर नहीं आता है? क्या उनके पेरेंट्स पर उनकी महंगी फीस देने का प्रेशर नहीं आता? या क्या इन बच्चों को एक अच्छा कोर्स चूज करने के प्रेशर नहीं आता? क्या पुलिस के जॉब में लोग रहे हैं उसके अंदर प्रेशर नहीं आता? जो आर्मी या डिफेंस फोर्सेस में, उन पे प्रेशर नहीं आता? जो मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, क्या उन पर प्रेशर नहीं आता? एजुकेशन फील्ड में काम कर, प्रेशर तो लाइफ के अंदर हर चीज में है। हाँ, प्रेशर जितना रहेगा, प्रेशर से आप कैसे उबर सकते हो उतना है। याद रखिए, जितना ज्यादा प्रेशर होगा, उसने जैसे तरीके से हैंडल करेंगे, उतनी ज्यादा आपको ग्लोरी रहेगी, उतना ज्यादा आपका नाम होगा, उतना ज्यादा आपको जॉब सेटिस्फेक्शन होगा। जैसे कल मैं कहूँ कि जैसे टैक्सी चलाने वालों में कोई बुरी बात मैं मानता नहीं, लेकिन किसी एक बंदे को मैं कहूँ कि भाई तुम टैक्सी चलाओ, तुम्हें 1 लाख रुपए मिलेंगे, और दूसरे किसी को कहूँ कि तुम पत्रकारिता करो और तुम्हें 1 लाख रुपए मिलेंगे, तो डेफिनेटली टैक्सी चलाना इज लेस रिस्की काम देन पत्रकारिता। बट अगेन उसके अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन भी आपको नहीं मिलेगा। अब तो वो बहुत सारी चीजें होती है, और प्रेशर को हैंडल किया जाता है। और प्रेशर लाइफ के अंदर हर चीज में आने वाला है, और हम लोग जितना ज्यादा प्रेशर हैंडल करेंगे उतना अच्छा होता है। और आपको बात अच्छा है, मीडिया का सपोर्ट आपके साथ में रहता है। किसी भी तरह का प्रेशर आता है, मीडिया का सपोर्ट होता है, पब्लिक का सपोर्ट आपके साथ रहता है, बहुत सारे एनजीओ आपके साथ में खड़े रहते हैं। तो प्रेशर आएगा, लेकिन प्रेशर को हैंडल कर किया जाता है, और जो जितना अच्छे से हैंडल कर लेगा वो उतना ज्यादा नाम कमाएगा। अच्छा, और एक ये करना था, क्योंकि ये प्रेशर रहता है, स्टोरी डिलीवर करने का प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर रहेगा, या फिर आप अगर क्राइम रिपोर्टर है तो क्रिमिनल के साथ यानी उनके साथ अपने सोर्सेस डेवलप करके स्टोरी लाने का प्रेशर रहेगा। इसमें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ किस तरह से बैलेंस करनी चाहिए लोगों को, क्योंकि वो जिस हिसाब से स्टूडेंट जाएगा, अब फील्ड में आएगा, वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ किस तरह से बैलेंस करे। देखिए, दिस इज बेसिक, दो चीजें पर्सनल, जहां तक मेरा सुझाव है कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरह से अलग रखना चाहिए। और दूसरा कि जब आप काम शुरू करेंगे तो लाइफ एंड प्लेजर का बैलेंस होना चाहिए। लाइफ में सिर्फ काम ही काम नहीं होना चाहिए, काम के अलावा जो लाइफ को भी एंजॉय करने वाली बात है वो भी होनी चाहिए। तो किस तरह से लाइफ में वर्क और उसका जो बैलेंस है वो किस तरह से कर पाता है, वो हर इंडिविजुअल को अलग तरीके से। किसी को घूमने में आनंद होता है, किसी को मूवी देखने में आनंद आता है, किसी को गाना गाने में आनंद आता है। तो अपना प्लेजर भी वो लेता रहे और काम भी है वो करता रहे, ये उसको बैलेंस बिठाना चाहिए। और जर्नलिज्म में एक चीज है कि अनसर्टनिटी बहुत सारी होती है, तो आपको समय ढूंढना पड़ेगा जो प्लेजर के लिए या लाइफ में जो पर्सनल लाइफ के लिए वक्त निकालना पड़ता है। पर्सनल लाइफ हम लोगों की बड़ी बुरी तरीके से प्रभावित होती है पत्रकारों की, क्योंकि फिक्स टाइम वाला जॉब नहीं होता है कि 10 to 6। अगर भूकंप आना है तो सुबह 6 बजे भी आएगा, वो 10 बजे का वेट नहीं करना पड़ेगा। किसी सरकार को गिरनी है तो संडे के दिन भी गिरेगी, वो तो नहीं सोचेगी कि आज संडे है या दिवाली है। तो ये चीजें हो जाएगी कि हमारे हमारे तमाम जो चीजें हैं, होली, दिवाली या तमाम हमारे जो त्योहार हैं, उस दिन हमें काम करना पड़ेगा। जितने भी क्राइसिस सिचुएशन, जब सारी बाकी का समाज अपने घर में शांत बैठा होगा, जैसे मैं बता रहा था कि या दंगों का वक्त हो, पानी भरा हो, ट्रांसपोर्टेशन का है, या वो अंदर बैठा रहेगा, या कोई बैठ के आराम से टीवी पे क्रिकेट का मैच देख रहा है, तब आपको फील्ड पे उतर के काम करना पड़ेगा। लेकिन इसका आपको ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, और ऐसे बहुत सारे जॉब है। क्या यही वाली चीज फायर ब्रिगेड वाले नहीं करते हैं? क्या यही चीज पुलिस वाले नहीं करते हैं? आर्मी वाले नहीं करते हैं? हमारी एक समाज और नेशन के प्रति एक जिम्मेदारी वाली चीज है, तो जिम्मेदारी को निभाना पड़ता है। और उसमें बहुत सारे व्यक्तिगत पर्सनल जो प्लेजर हैं वो सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, पूरी तरह से नहीं करने पड़ते, वो असल में पोस्टपोन होते जाते हैं। और आपको अच्छी चीज ये होती है कि आप तमाम बड़े बड़े लोगों से मुलाकात करेंगे, हर फील्ड के बड़े आदमी से मिलेंगे। आप बड़े पॉलिटिशियन से मिलेंगे, बड़े एजुकेशनिस्ट से आपकी मुलाकात होगी, बड़े स्पोर्ट्स पर्सन से आपकी मुलाकात होगी, बड़े बड़े उद्योगपतियों से आप मिलेंगे, बात करेंगे, इंसाइट होगी। ये आपको बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लगातार प्रोवाइड करते जाएगा। बहुत इस, अभिनेता के शायद आप ऑटोग्राफ लेने के लिए आपको धक्के खाने पड़ते होंगे, हो सकता है आप सामने खड़े के हाथ में माइक लेके उससे टफ क्वेश्चन पूछ लें, इसमें भी बहुत सारा आनंद आता है। तो इस तरह के जो प्लेजर हम लोग उसमें डिराइव कर लें। आपकी किताब में आपने कहा कि आपको आपके सोर्स ने एक गार्डन में बुलाया और वहां पर तेलगी की वो जो रिपोर्ट है वो आपको दी गई। रिपोर्टर और सोर्सेस, ये हमेशा ही एक, बार बार कोई भी आप वेब सीरीज देखो या फिर कोई भी किताब पढ़ो, कि रिपोर्टर और सोर्सेस ये एक एक अच्छा बंधन होता है। ये सोर्सेस डेवलप करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है एक रिपोर्टर के लिए,
वो इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें तो बिल्कुल अच्छा रहे। बिल्कुल, चाहे मैं तेदगी वाली किताब हो या फिर मैंने जो सीआईयू लिखी थी किताब जिसमें बहुत बड़े उद्योगपति के घर के बाहर विस्फोटक मिले थे वो किताब हो, या फिर शीना बोरा मर्डर केस हो, या फिर रंगा बिल्ला का वाली जो किताब है। बाकी एक पे वेब सीरीज आ चुकी है, बाकी तीनों पे वेब सीरीज अभी निर्माणाधीन है, प्रोडक्शन है, तो वो बन रही है। हर एक किताब के अंदर, या मैं कहूँ कि एक सोर्स के बारे में मेंशन हो, जो सोर्स होता है वो किसी भी पत्रकार का सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, और से धीरे धीरे डेवलप होते हैं, उसके साथ आपके ट्रस्ट फैक्टर बनते हैं। दो तरह के सोर्स होते हैं देखा जाए जन पत्रकारिता में, एक होते हैं प्राइमरी सोर्स और एक होते हैं सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स वो होते हैं जो इंपॉर्टेंट जगह पे बैठे अधिकारी और तमाम जो लोग होते हैं, चाहे हॉस्पिटल के अंदर का डॉक्टर हो, डीन हो, या पुलिस वाला हो, जो एक्चुअल में केस को हैंडल कर रहा है, और तमाम चीज का, जिसको हम कहते हैं कि डायरेक्ट सोर्स है, जो और जिसकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा होती है। और उसके बाद में एक होते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं जिसमें ज्यादातर हियर से होते हैं, कि भाई उसने वो सीधे स्टेट अवे पार्टी नहीं है, बट उसे खुद कहीं से पता चला है या इनडायरेक्टली है, आप उसको कोट नहीं कर सकते, तो इस तरह के होते हैं। और सोर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। देखिए, सोर्स है ये किसी रिपोर्टर के लिए वो कि किसी भी खबर की आत्मा के तौर पे होती है। जैसे मैंने जब वो खबर की थी, तेलगी घोटाला इतना बड़ा था, तो मैंने उसके बाद से आज मेरे ख्याल से उसको तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। 20 सालों में किसी को मालूम नहीं पड़ा है कि जो चीज थी, मतलब मैंने जब ब्रेक किया, वो एक्सपोज किया, तो मेरा सोर्स कौन था, कहाँ से मुझे खबर मिली और किसमें थी। इवन मेरे बॉसेस को भी, पत्रकारिता में है कि आपके बॉसेस को भी आपको सोर्स डिस्क्लोज आपको नहीं करना होता है, आपके परिवार वालों को भी सोर्स नहीं होता। ये जो सोर्स होता है इसको आपको अपने साथ लेके जाना होता है। एक बहुत बड़ी जर्नलिज्म में लेजेंड कहा जाता है जो वाटरगेट स्कैम हुआ था अमेरिका में, जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट को रिजाइन करना पड़ा था। उसका जो सोर्स था वो 30 साल तक उस सोर्स से प्रोटेक्ट की, 30 साल के बाद में लोगों को पता चला था कि वो सोर्स एक्चुअली में क्या था। और ये सोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली में, और क्योंकि यहाँ से हमें खबरें मिलनी शुरू होती है, जो एक्सक्लूसिव खबरें हैं या जानकारी है। कोई खबर हमने उड़ती उड़ती अफवाह सुनी है, लेकिन उसका हमें कंफर्मेशन चाहिए या डिनाइल चाहिए, तो ये खबर चाहिए, और सोर्स को बनाया जाता है। आप उससे मिलते हैं, धीरे धीरे ट्रस्ट फैक्टर उससे डेवलप करते हैं। वो आपको वेट करता है, वो देखता है कि भाई आप कितने पानी में हैं, आप पे यकीन किया जा सकता है कि नहीं, आप ढंग के पत्रकार हैं या नहीं, आप वैल्यू है या नहीं। वो आपको वेट करता है। आप उसकी वजह उसको अपनी तरफ से वेट करते हैं। आप ये देखते हैं कि अच्छा, ये मेरे किसी काम का है या नहीं, एक इससे खबर निकल सकती है या नहीं, आदमी बहुत खड़ूस है या आदमी हेल्पफुल है या नहीं। चलो, आज ये आदमी एक खराब पोस्ट पे बैठा है, लेकिन 2 या 3 साल बाद जब प्रमोशन होगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट पे जाके प्रमोशन होके जाएगा, तो आप वहां पे उसको कल्टीवेट करना शुरू करते हो। तो ये जो सोर्स की और इसकी जो कॉम्बिनेशन है, किसी भी पत्रकार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप जितने अच्छे सोर्स बनाएंगे और जितने विश्वसनीय सोर्स बनाएंगे, वो बहुत जरूरी है। अदरवाइज सोर्स बहुत भी हो सकता है, आप किसी हॉस्पिटल का कंपाउंडर भी होगा, वो भी आपका सोर्स होगा, लेकिन क्या आप उस पर यकीन कर सकते हैं आंख बंद करके, जितना कि किसी डॉक्टर के ऊपर यकीन कर सकते हैं। तो सोर्स की विश्वसनीयता जरूरी होती है। नंबर ऑफ सोर्स बहुत ज्यादा नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन पुख्ता होने चाहिए, उसकी बात ऐसी हो कि उसकी बात को तमाम चीजों का ये होना चाहिए। और लेकिन साथ में ये भी समझिए कि सोर्स अगर बोले तो उसके ऊपर नहीं कहते। जर्नलिज्म में जैसे कहा जाता है, और रिसेंटली मैं देख रहा था कि मेरे सोर्स ने अगर मुझे कहा कि बाहर आंधी आई है, तो मैं उसके सुनने पे नहीं करूंगा, मैं एक बार खिड़की खोल के देख भी लूंगा कि सचमुच में बाहर आंधी आई है या नहीं है। तो सोर्स को बिलीव करने के अलावा सोर्स को भी आपको क्रॉस चेक करना पड़ता है। आप आंख बंद करके किसी से आप भरोसा नहीं कर सकते हो। लेकिन जितना बड़ा सोर्स होगा, जितना इंपॉर्टेंट सोर्स होगा और जितना सीक्रेट सोर्स होगा, आपको पत्रकारिता में उसका उतना ज्यादा फायदा नहीं। आप हालांकि जितने भी क्राइम, बड़े बड़े क्राइम इवेंट्स हुए हैं, उसमें आपने आपकी जो स्टोरी हमेशा रहती थी, एक बहुत ही रंजक तरीके से आप उस स्टोरी को लिखते थे, ताकि जो पाठक है या फिर जो दर्शक है, उसका उसका उसकी कंटिन्यूटी बने रहे, उसको थोड़ा सी एक्साइटमेंट बढ़ी रहे। वो तो क्राइम या फिर कोई भी जर्नलिज्म की जो स्टोरी है, स्टोरी राइटिंग की क्या क्या विशेषताएं होती है, और आप अपने जो बच्चे अभी सुन रहे हैं, जो स्टूडेंट्स अभी सुन रहे हैं, उनको आप कौन सी टिप्स देंगे कि जिससे उनको ये राइटिंग स्किल आ जाए, डेवलप हो जाए। देखिए, जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं स्टोरी, हम खबर से बजाय हम बात कर रहे हैं स्टोरी। स्टोरी का मतलब ये होता है कि स्टोरी जब भी बात आ गई तो स्टोरी टेलिंग की टेक्निक्स आती हैं, और स्टोरी लिखने का एक तरीका होता है।
इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट और थोड़ा सा मनोरंजन एक्चुअली में आपको दिखाना चाहिए कि जितना इंटरेस्टिंग तरीके से आप बताएंगे आदमी उतना ज्यादा एनरोज होगा। जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे हैं रील्स बनाते हैं, बहुत प्लेन और वनीला रील भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें वो मजा नहीं आएगा जितना वो कैमरे के मूवमेंट कर रहे हैं या तो उसके बीच में जितने वॉइस मॉड्यूलेशन करके चीजें बात वगैरह कर रहे हैं। तो स्टोरी को लिखते वक्त में देखना चाहिए कि फैक्ट से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आपको परोसना तो सत्य ही है, फैक्ट ही परोसना है, लेकिन आप परोसते कैसे, इसलिए कि आप खाना वही परोस रहे हैं, उसकी प्लेटिंग किस तरीके से कर रहे हैं, या उसके आप जहाँ पे खाना खाने जा रहे हैं वहां का एम्बियंस क्या है, कि आप वहाँ पे किस तरह से अपने क्या कहते हैं इंस्टाग्राम फैमिली फोटोग्राफ ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज होगी उसके अंदर की फैक्ट, फैक्ट से बिना खिलवाड़ किए फैक्ट को प्रेजेंट करना है, ये सबसे बड़ी चीज है। ये नॉन इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। उसके बाद जो आता है कि आप उसको कितने मनोरंजक तरीके से करते हैं, और मनोरंजक तरीके से करने का तरीका भी होता है कि लोगों को समझ में आ जाए। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा कि पुरानी बात है, बट एक एनडीटीवी के एक रिपोर्टर थे कमाल खान, और वो एक उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था उसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो रिपोर्टिंग करने के दौरान लखनऊ में थे, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। तो ऐसा हुआ था कि उस एक दिन में दो दो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, एक मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता थे और मायावती ने ली थी, और दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज या असभ्य भाषा में एक दूसरे को बोला, तू ऐसा है गंदी नाली का कीड़ा, दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज में बोला था, जो किसी से शोभा नहीं देती थी, लेकिन भाषा का इतना स्तर गिर गया था। तो बहुत सारे जो पत्रकार थे, जिसमें एंड में एक पीटूसी की जाती है जिसका माइक लेके एंड में खड़े होकर साइन ऑफ करते हैं, तो बहुत सारे पत्रकार थे उस दिन। वो बहुत सारे लोग गए, किसी ने समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर खड़े होकर पीस टू कैमरा किया, किसी ने बीएसपी के ऑफिस के बाहर किया, किसी ने लखनऊ की विधानसभा के बाहर खड़े होकर किया। लेकिन कमाल खान नाम का एक जो रिपोर्टर था वो गया लखनऊ रेलवे स्टेशन के बाहर एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ, और उसके बैकग्राउंड में गाड़ी चल रही थी, और उसने बहुत अच्छी पीटूसी की। उसकी लोकेशन और उसकी स्टोरी पॉलिटिकल स्टोरी से संबंध नहीं था, लेकिन उसने एंड में ये बोला कि ये लखनऊ वो शहर है जहाँ पे पहले आप करते हुए गाड़ी छूट जाती थी, यहाँ पे भाषा की वो तहजीब होती थी। और आज जो लखनऊ के अंदर भाषा मुलायम सिंह यादव या मायावती बोल रहे हैं, उसका और लखनऊ के बीच का कोई संबंध नहीं। अब उसने एक पॉलिटिकल स्टोरी को सडनली किसी और जगह से कंपाइल किया, और लखनऊ शहर जो अपनी भाषा की नजाकत नफासत के लिए जाना जाता था, जहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छी और सोफिस्टिकेटेड भाषा बोली जाती थी, उसने उसने जोड़ा था। या भी मैं बताऊं कि मैं एक बार कवर करने गया था, बिल्डिंग का एक कोलैप्स हुआ था। बिल्डिंग कोलैप्स के कॉमन विजुअल होते हैं, डेब्रिस पड़ी है, लोग गिरे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोग निकाल रहे हैं वगैरह वगैरह। बट वहां पे एक जगह पे मुझे मिला था कि एक घड़ी दिखी थी। तो घड़ी में तकरीबन कुछ 10 बज के 5 मिनट पे 5 पे वो घड़ी रुकी हुई थी, उसका टाइम रुका हुआ था, जो वॉल क्लॉक होती है। तो वो उठा के मैंने खबर की थी। वो एक्चुअली में घड़ी इस बात का सिंबल थी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर तबाही शुरू हुई थी, इसी वक्त में बिल्डिंग गिरी थी, और ये बिल्डिंग के गिरने का और इतने सारे लोगों के मरने की सबसे बड़ी गवाह ये घड़ी है, जहां से ये तमाम चीजें शुरू हुई थी। तो वो मैंने दिखाई थी। अदरवाइज बहुत सिंपल था कि अलग अलग तरह के विजुअल आते, लोगों की बाइट्स होती जिसमें लोग कहते कि भाई ऐसे ये हो गया था, ऐसे हो गया था। तो ये तरीका होता है कि आप किसी भी स्टोरी को कितने अच्छे अंदाज से कर सकते हो। हर एक का अंदाज अपना अलग अलग होता है, और आप उसको डेवलप कर लेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन द फैक्ट और उसके बाद में सबसे बड़ी चीज है कि आपका मनोरंजक तरीके से पेश करने का अंदाज, और तीसरा है कि टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज पे मैं बार बार जोर देता हूँ कि स्टोरी को आपको विजुअली सोचना है, स्टोरी को से आपको कनेक्ट होना चाहिए। आप चाहे तो व्यूअर को रुला दीजिए, उसको हंसा दीजिए, उसके अंदर गुस्सा पैदा कर दीजिए किसी चीज के प्रति, लेकिन आप जब तक उसके इमोशंस को जब तक टच नहीं करेंगे, तब तक मैं कहता हूं, मुझे लगता है कि अच्छी स्टोरी लिखने को अच्छा नहीं। आपकी जो किताब है तेलगी स्कैम एक रिपोर्टर की डायरी, उसके ऊपर एक ओटीटी सीरीज हुई, और आर दो जो है वो उसके ऊपर बन रही है अभी। एक सीआईयू है, क्रिमिनल इन यूनिफॉर्म, और दूसरा है, एक थी शीना बोरा। और भी आपकी किताबें आ रही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन, एक रिपोर्टर का लेखक की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये किस तरह था आपके लिए? और जब नया कोई बंदा इसमें एंटर करेगा, इस फील्ड में एंटर करेगा, तो उसको उस तरह की जो स्किल्स अपने आप को उसमें ढालना है, वो किस तरह से होगा, ये बताइए आप। देखिए, ये किताब तेलगी वाले पे जो किताब थी उसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है।
जब मैं 2003-4 में मैंने ये स्कैम एक्सपोज किया था, जैसे बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, तब मुझे लगा कि देश को पता चलना चाहिए, इसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि ये स्कैम क्या था और कैसे हुआ था। अब मैं बात कर रहा हूँ 2003-4 की, जब सोशल मीडिया नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, गूगल नहीं था, इंटरनेट में स्मार्टफोन नहीं था, इंटरनेट 2G के लेवल पे चला करता था, ये लेवल पे था। और मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा आएगा भी कि स्मार्टफोन का भी इन्वेंशन होने वाला है, OTT नाम की भी चीज वगैरह है। तो मैं उस दौर में था, तो मुझे लगा कि किसी ना किसी तरह से इसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों को आगे कहीं से पता चले कि एक स्कैम इतना बड़ा हुआ था और कैसे हुआ। तो मैंने वो किताब लिख दी थी। और जैसे मैंने बताया कि उस दौर में सोशल मीडिया और तमाम चीज का दौर नहीं था, तो किताब को प्रमोट करने के किसी भी तरह के कोई विकल्प ऑप्शन मौजूद नहीं थे। देन उसके बाद 16-17 साल के बाद में सोनी लिव वाले हैं, वो लोग आए थे मुझे मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि आपकी जो किताब है, उस किताब के ऊपर हमें वेब सीरीज बनानी है। और फिर उन्होंने उस किताब के राइट्स लिए, और फिर उसके बाद वो किताब हार्पर कॉलिन्स ने छापी। और क्योंकि वेब सीरीज के आने के बाद वो किताब जब फिर से नए दौर में जब से रीलॉन्च हुई, उसके बाद से वो बेस्ट सेलर की कैटेगरी में आ गई। और उसके बाद से और भी बहुत सारी। तो इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था कि मुझे एक लंबा इंतजार करना पड़ा, मेरी पहली 2 किताबों के बीच में 16-17 साल का फासला था। तो वो फासला मैंने तय किया था। लेकिन ये था कि पहले उसके आउटलेट नहीं थे। आज के तारीख में जब हम बात कर रहे हैं कि हम OTT के दौर में, तो OTT के दौर में गोल्डन पीरियड चल रहा है, रियल लाइफ स्टोरीज की बहुत डिमांड है। और रियल लाइफ स्टोरीज के लिए, जैसे मैं 26-27 साल से पत्रकारिता लगातार करता रहा था, क्राइम और उसमें किया था, तो यार बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं, और बहुत सनसनीखेज इंसिडेंट्स है, कहानियां हमने देखी हैं, कवर की है वगैरह, जिससे हम रूबरू हुए। तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा सा दौर है जिसको आपको लेखन के तौर पे लाना चाहिए, किताब के फॉर्म में आए, और बुक किताब भी सामने आती है और उस पर वेब सीरीज भी बनती है। और लोग, क्योंकि OTT आने के बाद ऐसा हुआ है कि बहुत सारी जो स्कैम्स और तमाम चीजें जो शायद न्यूज में थोड़ा समझने में और पढ़ने में जो बोझल लग रहा था, तो OTT में थोड़ा मनोरंजक तरीके से उसको पेश कर दिया जाता है और रियल लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में बता दिया जाता है। तो ये वजह था कि मैंने उस तरीके से किताबें लिखनी शुरू की। मैं जनरली वही किताबें लिखता हूँ जहां पर मेरा कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो, जो मैंने खुद कवर की है। अब इसमें मेरी लेखन कला, आप कहें कि भाषा शैली से लेके राइटिंग स्टाइल और तमाम चीजें, वो उतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि जितना मेरे वाले के लिए मैटर करती है जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो मैंने खुद कवर किया था, मुझे इनसाइड की इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक डोमेन पे। तो मैंने उस तरीके से किया, और एक के बाद एक इस तरह से लिखना शुरू किया। और एक बहुत अच्छा चीजें हैं कि पत्रकार के लिए ऑल्टरनेटिव करियर भी बहुत सारे होते हैं। पत्रकार का मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि आप लाइफ टाइम रिपोर्टर बनेंगे, या आज आपने शुरू किया 22-23 साल की उम्र में और उसके बाद आप 60 की उम्र में एक बूढ़े पत्रकार के तौर पर रिटायर नहीं होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं। तो आपके पास जब पत्रकारिता आप करते हैं, बहुत सारे एवेन्यूज खुल जाते हैं। जैसे अब मैं फुल टाइम लेखक के तौर पर आ चुका हूँ और मेरी किताबें बहुत अच्छी कर रही हैं। इसके अलावा आप PR की इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप शो के प्रेजेंटर बन सकते हैं, अलग अलग बहुत सारे आपके लिए विकल्प खुलते हैं, एनालिसिस, इलेक्शन एनालिसिस में जा सकते हैं। तो जब पत्रकारिता आप करते हैं, तो आपके पास जब कुछ सालों का अनुभव आ जाता है, तो आपके पास बहुत सारे और जो विकल्प है, रास्ते हैं, वो खुल जाते हैं पैरेलल प्रोफेशन में, या वर्टिकल जो अलग वर्टिकल प्रोफेशन में, उसमें जाने के लिए। तो उसी में से मैंने जो था वो राइटिंग वाला विकल्प था, वो चुन लिया। आप एडुकेशन के अंदर हैं, मैं जानता हूँ कि आपने पत्रकारिता इतने साल की, और आज आपने जो पत्रकारिता में जो आपने सीखा था, जो आपने फील किया था, जो आपने लगातार कवर किया, वो पूरे पत्रकारिता का जो एक्सीलेंस था, अब आप उसको एकेडमिक ब्रिलियंस के अंदर तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़के हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनको अच्छी से अच्छी और लेटेस्ट जो चीज है वो उसको पता पता चले। अब फिल्म क्रिटिक भी हैं, और फिल्म क्रिटिक भी अपने आप में एक बहुत सारा ऑप्शन है। तो पत्रकारिता करने का मतलब होता है कि आप अपने लिए बहुत सारे एवेन्यूज भी खोल सकते हैं। सिर्फ जरूरी नहीं कि आप पत्रकार बन के एज अ पत्रकार ही रिटायर। तो सिर्फ लेखक नहीं, बाकी भी बहुत सारी चीजें करने के आपके पास ऑप्शन होते सर, ये आखिरी सवाल होगा। आ, एक तो अब जितना चीजें जो सामने आ रही है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, एडवांस होती जा रही है, उस टेक्नोलॉजी में एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कंटेंट के लिए एक सबसे बड़ा जिसे एनिमी माना जा रहा है। तो जब कंप्यूटर ही AI टूल से अपनी खबर लिख रहा है या फिर कंटेंट तैयार कर रहा है, ऐसी स्थितियों में एक जो नए बच्चे आ रहे हैं, वो क्या ख्वाब लेके आए कि क्या AI उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, और अगर चुनौती होगी तो उनमें ऐसी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए कि जो वो आगे जाके अच्छी पत्रकारिता कर सके।
देखिए मैं आपको बता दूं, एआई के बारे में मैं लगभग 2017 से बोल रहा हूँ, और जर्नलिज्म में धीरे धीरे बहुत सारी चीजों में आ गए हैं। जैसे मैं बता दूं कि बहुत सारे स्पोर्ट्स के जो हाईलाइट्स एडिट्स होते हैं वो एक्चुअली ह्यूमन नहीं करते हैं, वो अभी अब मशीन ही करती है सर्टन बातें रह करके। या बहुत पहले से जो बिजनेस रिपोर्ट्स जो सेंसेक्स वगैरह टाइप की जो होते हैं राइटिंग्स होती हैं वो कर रहे हैं। 2017 से चीजें चीज चल रही है, अब तो थोड़े डेवलप होकर आम जनता के लिए अवेलेबल हो। मैं तब से कह रहा हूँ, बात यह है कि ये हमारे लिए चुनौती है, लेकिन चुनौती के साथ कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता लूं कि 95 में जब मैंने शुरू किया था तब कहा गया था कि अब टेलीविजन आ गया, प्रिंट मीडियम खत्म हो जाएगा, अखबार खत्म हो जाएगा, ऐसी चर्चा हमेशा चला करती थी। लेकिन उसके बावजूद इतने साल हो गए, अखबार ने भी अपने आप को सर्वाइव किया, टेलीविजन भी आगे बढ़ा, और अखबार ने लेकिन सर्वाइव किया तो अपने आप को रीलॉन्च किया, अपने पुराने अवतार में नहीं था, उसने अपने आप को डेवलप किया, कलर प्रिंट आउट लाए, खबरों को परोसने का बताने का जो तरीका था वो बदला। फिर बीच में जो दौर आया कि अब सोशल मीडिया आ गया, तमाम चीजें आ गई, इंटरनेट आ गया है, तो अब अखबार खत्म हो जाएंगे, रेडियो खत्म हो जाएंगे, टेलीविजन खत्म हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सोशल मीडिया ने, अपने इंटरनेट ने अपने आप को तो ग्रो किया, लेकिन अगेन दोनों कॉम्प्लीमेंट बन गए। आज की तारीख में एक अखबार जो है या एक टेलीविजन चैनल है, उसकी अपनी वेबसाइट भी है, और उसकी वेब एडिशन पे भी खबरें ला रहा है, उसके अखबार भी है। अखबार है वो अपनी वेबसाइट पर विजुअल खबरें भी डाल रहा है, और ये तमाम लोग सोशल मीडिया के ऊपर हर एक के अपने हैंडल और लगातार पोस्ट वगैरह कर रहे हैं। तो उन्होंने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट के तौर पे ले लिया, थ्रेट के बजाय। तो मुझे लग रहा है कि एआई चैलेंज है, थ्रेट नहीं है। चैलेंज इस सिलसिले में है कि अब आपका ह्यूमन से नहीं मशीन से मुकाबला होगा। आप जो काम शायद 2 घंटे में रिसर्च में करने वाले होंगे, वो शायद 20 सेकंड में या 2 मिनट में एक्चुअली में एआई आपको तमाम चीजें करके देगा। अब उसके लिए आपको रीलॉन्च करना होगा और बेहतर करना पड़ेगा। एआई का इस्तेमाल दुश्मन के थ्रेट के तौर पे देखने के बजाय हमें उसे अपने फायदे के लिए और अपने कॉम्प्लीमेंट के तौर पे कह सकते हैं। एआई आपको वही खबरें देगा जो डिजिटल स्पेस में कहीं ना कहीं मौजूद है, और वहीं से ग्रैस्प करता है। ये मेरे साथ भी हुई थी जब मैं किताबें लिख रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है कि जब मैं अगर अच्छा पत्रकार हूँ, तो मैं ऐसे, मेरे पास ऐसी बहुत सारी जानकारी और खबरें होंगी जो डिजिटल स्पेस में नहीं होगी, और जो गूगल सर्च पे भी अवेलेबल नहीं होगी। तो पत्रकारों को अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा, ताकि उसके पास ऐसी जानकारियां वगैरह हो जो किसी और के पास नहीं हो, सर्टेन एक्सक्लूसिव चीजें हो जो किसी को गूगल करने पे ना हो। ये वो एक तरीका होता है। दूसरा कि आप अपने जो प्रेजेंटेशन का तरीका है, अंदाजे बयां तरीका है, लिखने की स्टाइल है, वो भी बहुत बार इंटरेस्टिंग चीजें आप ऐसे डेवलप कर सकते हो जो उससे एआई उसका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वो आप आपकी अपनी स्टाइल है। आप बहुत बार देखते हैं खबर एक ही होता है, उसको पढ़ने वाले 4 या 5 अलग अलग एंकर होते हैं, लेकिन आप किसी एक को ही हमेशा एक को ही सुनते हैं, बिकॉज आपको खबर वही है, उस आदमी के एक्चुअली में जो पढ़ने की का जो चीज है वो अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं बताऊं, ये अगर एग्जाम्पल के मैं थोड़ा पहले लेके जाऊंगा कि कितना अच्छा राइटिंग होता, तो बहुत पहले की बात है। एक मैच हुआ था सार्क का, हॉकी का मैच में, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को 5-2 से हराया, और तमाम स्पोर्ट्स की खबर थी, तो लोगों ने एकदम प्लेनली दिया कि आज इंडिया ने पराजित किया वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन एक तभी न्यूज के एंकर थे जिनका नाम था एसपी सिंह, और उन्होंने जो लिखा वो ये था कि 100 सोना एक तरफ और हॉकी का सोना एक तरफ, और उसके बाद भी जीत अगर पाकिस्तान पर हो तो सोने पे सुहागा। आज भारत ने पाकिस्तान को 5-2 से रौंद दिया। ये उन्होंने एंकर पढ़ा था। अब इसमें देखिए कि ये क्या एआई इस लेवल पे सोच पाएगा क्या कोई भी? या रौंद दिया, पर हो सकता है वो कह सकता था पराजित कर दिया, हरा दिया। लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, तो जो रौंदना शब्द है, क्रश करना जैसे जो शब्द है, वो हमको एक अलग तरह की फील देते हैं। वही न्यूजीलैंड का अगर टीम होती तो कहते हैं हाँ न्यूजीलैंड को आज हरा दिया, लेकिन जब पाकिस्तान आया तो वो उसको रौंद दिया, आपने सेंटीमेंट पकड़े। तो लोग बहुत बार होता है कि आपकी अपनी जो स्टाइल है, प्रेजेंटेशन का तरीका कितना अच्छा है, कितना अलग है, और आपके पास जानकारी कितनी एक्सक्लूसिव है, ये जो चीजें हैं ये भी ध्यान देना पड़ेगा। और एआई को हमको एज अ कॉम्प्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल करना है। एआई टूल है, ठीक है, वो हमसे काम फास्ट कर सकता है, बट ह्यूमन ब्रेन का रिप्लेसमेंट होना उसका बहुत ही मुश्किल है। और इसलिए जितना हम उसको इस्तेमाल करें अपने फायदे के लिए, वो बेहतर है, बिना इसके उससे डरे हुए। और मुझे लगता है कि हमारी जो अगली जनरेशन है उसके लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छे दिन है, जो हमारे लिए शायद नहीं थे, क्योंकि हमने शुरू किया तो तब तो इंटरनेट नहीं था, गूगल नहीं, तो हमने फिजिकल सर्च भी देखी थी, गूगल सर्च भी हमने देख ली है। और लेकिन अगली वाली जनरेशन के पास एडिशनल एडवांटेज होगा एआई का, जो एआई का इस्तेमाल करके अपने काम को और बेहतर कर सकते सर अब मेरे तो सवाल खत्म हो गए। कुछ सवाल अपने कमेंट बॉक्स में है, तो पहला जो सवाल है वो अब लेते हैं सवाल। पहला जो सवाल है कि सर, हेलो सर, कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन फ्यूचर ऑफ रीजनल जर्नलिज्म?
क्षेत्रीय भाषा में जो जर्नलिज्म किया जा रहा है, क्योंकि हर जगह पे इंग्लिश, बच्चे भी अभी इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो ये रीजनल जर्नलिज्म का फ्यूचर क्या हो सकता है? देखिए, रीजनल जर्नलिज्म का फ्यूचर हो सकता है, मैं कहूंगा कि उसकी प्रेजेंट स्थिति भी बहुत ज्यादा ब्राइट है। और जहां जहां पे रीजनल जर्नलिज्म है, वहां पे जो नेशनल लेवल के जर्नलिज्म एक्चुअली बहुत कम है। जैसे आप सदर्न इंडिया में जाइए, लोग अपनी भाषा में ही खबर देख रहे हैं, वहां पे हिंदी की नहीं है। बंगाल में जाइए, आज की तारीख में जिसको हम तथाकथित नेशनल टीवी कह रहे हैं, वो हिंदी बेल्ट, हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट्स है, उस तक सीमित समेट के रह गए। और तमाम जितने भी चैनल है, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जी की बात करूँ, तो जी का हिंदी चैनल है, लेकिन जी का मराठी चैनल है, यूपी के लिए अलग चैनल है, राजस्थान के लिए अलग चैनल है, मध्य प्रदेश के लिए अलग चैनल है। ऐसे ही बाकी एबीपी नाम का जो न्यूज चैनल है, उसका बंगाल के लिए अलग चैनल है, उत्तर प्रदेश के लिए अलग चैनल है, महाराष्ट्र के लिए एबीपी माझा है। तो रीजनल जर्नलिज्म हमेशा की मौजूदा स्थिति भी बहुत ब्राइट है, और लोग होते हैं कि आम भाषा में और अपनी भाषा में देखने की कोशिश करते हैं। और एक अच्छा एग्जाम्पल मैं बताऊं, हमेशा आईपीएल का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आईपीएल में पहले हिंदी अंग्रेजी में कमेंट्री होती थी। आज वो मराठी में भी कमेंट्री हो रही है, भोजपुरी में कमेंट्री हो रही है, बंगाली में हो रही है, 8 से 10 अलग अलग भाषाओं के अंदर आप कमेंट्री देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो भी आदमी है उसे अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा, ऐसी बात नहीं कि उसे अंग्रेजी नहीं आती होगी, ऐसी बात नहीं क्योंकि हिंदी समझ में नहीं आती होगी, लेकिन वो चाहेगा कि मैं अपनी भाषा में देखना चाहूँ। और जब भी जर्नलिज्म का मैं फील्ड एक्सपांड करना होगा और समाज के हर तबके तक जाना होगा, उसकी भाषा में होगा। मुझे, मेरा जो चाय वाला होगा, दूध वाला होगा, टैक्सी वाला होगा, उसकी जो भाषा है देखनी पड़ेगी। कोई हाउस वाइफ है, वो अपनी भाषा में देखना शुरू करेगी। इनफैक्ट उसका एक और स्टेज है कि हम नेशनल, इंटरनेशनल जर्नलिज्म होता है, नेशनल लेवल का होता है, फिर रीजनल लेवल का होता है। रीजनल के अंदर भी एक नया टर्म है, लोकल या हाइपर लोकल। मतलब मैं कह रहा हूँ कि सिटी स्पेसिफिक जो जर्नलिज्म है, इसका भी बहुत बड़ा फ्यूचर है। और सिटी स्पेसिफिक आने के बाद में अलग अलग उसके और हाइपर लोकल वर्टिकल जैसे निकल जाते हैं। फूड जर्नलिज्म का अपना अलग वैल्यू है और अपनी भाषा में अलग है। तो रीजनल जर्नल, जब सवाल था कि रीजनल जर्नलिज्म का बहुत बहुत ब्राइट फ्यूचर, और ये आगे जाके और हाइपर लोकल होते जाएगा। जैसे महाराष्ट्र का सिर्फ चैनल नहीं होगा, महाराष्ट्र में शायद विदर्भ का अलग चैनल होगा, या पश्चिम महाराष्ट्र पुणे का अपना अलग चैनल होगा, इस तरह की चीजें होगी। और ये बात भी है कि ऐसे जरूरी नहीं कि जो इंटरनेशनल जर्नलिज्म कर रहा है, अंग्रेजी में कर रहा है, वो नेशनल करने वालों से बड़ा है, या जो रीजनल में मराठी में, बंगाली में या कन्नड़ में कर रहा है, वो छोटा है और हिंदी और अंग्रेजी में करने वाला है। ये बिल्कुल नहीं होता है। इनफैक्ट मैं अपने अनुभव से बताता हूँ कि 80% खबरें जो होती है, वो रीजनल जर्नलिस्ट ब्रेक करते हैं, और उसके बाद में उसको फॉलो करने का काम करते हैं नेशनल हिंदी और अंग्रेजी के जर्नल। तो ये साफ तौर की बात है। इसीलिए रीजनल जर्नलिज्म का ऑलरेडी जो प्रेजेंट सिचुएशन है ये बहुत अच्छी है, बहुत ब्राइट है, और उसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अपना कीमती समय निकाला और हमें आपका कीमती वक्त दिया। एक सवाल स्टूडेंट का है कि तेलगी स्कैम को रिसर्च करना है, आप रिसर्च करने में आपको कितना समय लगा? या बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आखिरी सवाल कि, है। हाँ, इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आज के दौर में होता तो मुझे 2-4 दिन ही लग जाते, और मुझे मुंबई में अपने लैपटॉप पे बैठे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ 2003-4 की, तो जब मुझे पहली बार वो रिपोर्ट मिली थी, रिपोर्ट जब मैंने पूरी पढ़ी, तो मुझे आधी चीजें समझ में नहीं है कि स्टैम्प पेपर क्या होता है, कि उसका क्या मतलब होता है। आज की तारीख में उसके बारे में मैं शायद गूगल करूंगा, मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो मैं पहले गया रिसर्च करने के लिए, स्टैम्प ऑफिस में गया, पता किया कि स्टैम्प पेपर होता क्या है, इसका वैल्यू क्या होता है, कैसे बनता है। फिर पता किया कि कहाँ छपता है, तो उसके लिए मुझे पता चला कि नासिक नाम की जो जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ छपता है। तो फिर मैं मुंबई से रिसर्च पूरी करके मैं फिजिकली खुद नासिक गया। नासिक के अंदर जो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस है, जहाँ पे स्टैम्प पेपर और स्टैम्प वगैरह सब छपते, वहां गए। वहां पे भी किसी तरह का कोऑपरेशन नहीं मिला। मैंने मेरी किताब में इस बारे में पूरी तरह से लिखा भी हुआ है डिटेल के अंदर। वहां से मुझे किसी तरह का ना कोऑपरेशन नहीं मिला, तब भी जितनी जानकारी मिली मैंने वहां से उसे निकाली। फिर उसके बाद मैं पुणे गया, पुणे में बहुत बड़ा तेलगी का स्टैम्प का केस था, वहां जाके जानकारी निकाली। फिर उसके बाद कर्नाटक गया, तेलगी का जो गाँव है, खानापुर है, वहां गया, वहां से जानकारी निकाल के फिर मुंबई में आया, रिसर्च किया। मुझे इतनी सारी जगह पे फिजिकली जाना पड़ा था और कई कई दिन रहना पड़ा था, और तब मुझे चीजें पता चली थी। तो ये रिसर्च मैंने तब की थी। आज की तारीख में भी करता तो आसानी से तो नहीं मिलता, लेकिन बहुत सारा जो काम मेरा है वो इंटरनेट की वजह से आसानी से हो जाता है। यही वजह है कि मैं बार बार नए स्टूडेंट्स और उनसे कहता हूँ कि भाई आपके लिए चीजें बहुत आसान है, बहुत अच्छा लॉन्चिंग पैड है, खाली आप में
हिम्मत होनी चाहिए और एक कन्विक्शन होना चाहिए पत्रकारिता पर। तो सर एक अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के जवाब आ रहे हैं, सॉरी सवाल आ रहे हैं, तो उसके जवाब तो आपको देने पड़ेंगे। और एक दो तीन सवाल ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग वाइंड अप करेंगे क्योंकि बहुत आपने बहुत वक्त दिया है। एक तो सवाल है श्रुति का। श्रुति पूछ रही है कि एआई एंकर के बारे में कुछ बताइए, कि जो एआई एंकर सभी बहुत सारे न्यूज चैनल्स में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो वो किस तरह से होते हैं, और अ, क्या इसे थ्रेट की तरह देखना चाहिए, टेक्नोलॉजी थ्रेट की तरह। और दूसरा सवाल है करण सिंह का, जो बोल रहे कि हाउ कैन वी बिल्ड अ बिजनेस इन दिस इंडस्ट्री। न्यूज इंडस्ट्री में बिजनेस किस तरह से डेवलप किया जाए। पहले मैं श्रुति के का जवाब दे देता हूँ। एआई और एआई के थ्रू जो एंकर्स वगैरह हैं, ये मुझे लग रहा है कि एक लोगों ने किया और ये आगे ये चलन और बढ़ता जाएगा। और उसके पीछे मैं आपको बता दूं कि उसके बाद वही एंकर रह जाएंगे ना जो वैल्यू एडिशन करते हैं। जैसे हम बहुत बार खबरें टीवी पे ऑन वगैरह करते हैं, तो हमें मालूम नहीं रहता कि वो सुबह जो एंकर पढ़ रही है खबर या पढ़ रहा है या दोपहर को पढ़ता है, वो कौन है हमें पता नहीं होता, नाम भी नहीं पता होता, वो कभी बदल भी जाते हैं तब भी हमें फर्क नहीं पड़ता है। उनकी जगह आप किसी को बिठा दो, क्योंकि वो वैल्यू एडिशन नहीं कर पाए। जो वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रहे हैं वो तरह के जो एंकर हैं वो खत्म हो जाएंगे या बहुत कम हो जाएंगे। वही लोग बचेंगे जो बेसिकली वैल्यू एडिशन कर पा रहे हैं। मैं जैसे एग्जांपल लूं कि रवीश कुमार हो, सुधीर चौधरी हो, चौरसिया हो वगैरह। मैं बड़े चेहरों की बात कर रहा हूँ, उनकी पत्रकारिता के लेवल की और प्रामाणिकता की कोई आ, मतलब साख सर्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो बड़े बड़े नाम रहे हैं वो रह जाएंगे। हर चैनल में दो चार उस तरह के लोग रहेंगे। लेकिन ये अपने आप में चैनल है कि हर पत्रकार को अपने आप को इतना फिट बनाना पड़ेगा कि उसे लगे कि हाँ, मैं अपनी वैल्यू को साबित कर सकता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे फर्नीचर की तरह नहीं बैठा हूँ कि न्यूज आई और न्यूज मैंने पढ़ा उसके बाद चले गए, और कल अगर मैं नहीं रहा तो व्यूअर मेरी कमी नहीं फील करेगा। ऐसा नहीं। जो हर चीज को अपना एक अपना वैल्यू एडिशन करने वाला बनाना पड़ेगा। और ये अगेन ये चैलेंज है, लेकिन ये अपने आप को शार्पन करना पड़ेगा। इसलिए कि आप आज का कोई भी गेम खेले, ऐसे 20 साल पहले क्रिकेट के अंदर डाइव मारने के अच्छे फील्डर बहुत कम होते थे, लेकिन आज की तारीख में हम खेलेंगे तो 11 के 11 फील्डर होने चाहिए और हमें हर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कैच लेने आना पड़ेगा। यू हैव टू बिकम फिट। तो एआई है वो आपको चैलेंज पोज करेगा, आपको फिट बना देगा और आपको एक बेहतर करेगा। और अगर आपकी जरूरत नहीं है और अगर आप कोई प्लेन वनीला फेस के साथ बिना कोई वैल्यू एडिशन की अगर आप एंकरिंग कर रहे हैं या न्यूज रीड कर रहे हैं, तो फिर आपकी किसी को कोई जरूरत नहीं होगी। तो आपको अपने आप को और बेहतर और फिटर बनाना पड़ेगा। दूसरा जो सवाल था कि बिजनेस के तौर पे कैसे डेवलप किया जाता है। आप बहुत अच्छे दौर में रह रहे हैं जिसके अंदर, जैसे हमने जब शुरू किया था तो हमें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती थी, कोई अखबार चाहिए होता था, कोई टेलीविजन चैनल चाहिए होता था बात कराने का। आज आपके तारे हाथ पास जरूरी नहीं, आपके पास बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। आपके पास हाथ में एक मोबाइल है, हर आदमी अपने आप में जर्नलिस्ट बन सकता है एक छोटे से सेटअप के साथ में, और उसको मोनेटाइज कर सकता है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि एक अकेला सा यंग सा लड़का जो 22-25 साल की एज से जिसने शुरू किया था, ध्रुव राठी, आज उसके 2 करोड़ सब्सक्राइबर हैं और आज भारतीय इलेक्शन को अकेले अपने आप पे प्रभावित कर रहे हैं। वो कौन से न्यूज चैनल से काम करता है? किसी में नहीं। किसी न्यूज़पेपर पे का रिपोर्टर है? नहीं। उसने अपने बल पे शुरू किया था। और आप ऐसे ओपन करेंगे तो यूट्यूब हो या बाकी भी जो मीडियम है, उससे आपको ऐसे बहुत सारे पत्रकार मिल जाएंगे जो शायद आज किसी चैनल के लिए नौकरी नहीं कर रहे हैं या किसी अखबार के लिए नौकरी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपना सेटअप शुरू किया और उसके बाद सोशल मीडिया पे जैसे होता है, आपका काम जितना अच्छा होता है, आपको अपने काम को आप मोनेटाइज कर सकते हैं। आपका काम जितना अच्छा होगा उतना आप पैसे भी बना सकते हैं, अच्छे अच्छे खाते पैसे भी कमा सकते हैं। आपके पास कुछ बेसिक सेटअप होना चाहिए जो आप लोग के पास होता है। एक अच्छा मोबाइल कैमरा होना चाहिए, वो आप लोग के पास हमेशा होता है। यंग लोग हमेशा अच्छे अच्छे मॉडल ही इस्तेमाल करते हैं। एडिटिंग का सॉफ्टवेयर होना चाहिए और आनी चाहिए। आपको एडिटिंग करना है, हमेशा यंग करते हैं। एक बेसिक कुछ अच्छी लाइट्स वगैरह हो जाए, बस। ये छोटी छोटी स्किल है। लेकिन ये जो दौर था, आपसे पिछली जनरेशन वाले के पास ये सुविधा नहीं थी जो आपके पास ये सुविधा है। और सिर्फ आपको शुरू करने के देर है। जैसे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, लोग ज्यादा करेंगे, आपकी वो जो चीज है मोनिटाइज होगी और आप उसको एक अच्छे खासे बिजनेस मॉडल के तौर पर डेवलप कर सकते थैंक यू सर, थैंक यू। आपने अपना बहुत कीमती वक्त दे दिया है। मैं निधि को कहूंगा कि आप वोट ऑफ थैंक्स दे। थैंक यू सर। Thank you. Thank you so much, sir. And as we approach to the end of this webinar, I'm honored to deliver the formal vote of thanks.
I would like to extend my heartfelt gratitude to our guest, Dr. Sanjay Singh sir. Your insights and experience have been incredibly enriching, and your dedication and your hard work is truly inspiring for all of us. Thank you for motivating us today with your knowledge and experience and addressing the questions and the queries of our students. Our words really cannot justify how thankful we are that you have joined us today and have given your valuable time. Thank you so much, sir. A special thanks goes to our founders and the PCET Board of Trustees, as well as Honorable Vice Chancellor Dr. Manimala Puri ma'am and Pro Vice Chancellor Dr. Sudeep sir for making this event possible. I'm also grateful to Professor Narendra Bandabe sir for his expert guidance and for conducting this webinar. Our thanks also extend to deans, directors, head of institutes, and faculty members from various schools of Pimpri Chinchwad University, whose presence has greatly supported us. A special appreciation and thanks to our faculty members, Professor Pooja ma'am and Abhishek Chaudhary sir, who have worked for the success of this webinar. A big thank you to our marketing and admissions team for their relentless effort in promoting this event and providing the necessary technical support to us. Lastly, I would like to thank all the students who have attended this webinar with us today and for your participation. Your engagement is truly valuable to us. For those who are having some additional queries related to the course, please feel free to connect with us through our website link. We will keep conducting series of such webinars with the prominent personalities from the media industry. So stay connected with us through our social media handles, through our website, and also the emails to be informed about our upcoming events and webinars. With this, thank you so much, everyone. Have a wonderful day. Thank you.